Hello students, how are you? I hope you all are fine. Let's do the topic of amendment of the Constitution of India. This is very important for all those law students who are preparing for judiciary exams and even for those students who are preparing for IAS and other allied exams. So what do you mean by amendment of the Constitution of India? You know what is amendment? The basic meaning of amendment is correction of something, correction of an error. So as far as Constitution is concerned, it means correction of an error, some error in the constitutional provisions, correction of any provision of the Constitution, correction of any article of the Constitution. This is amendment. So basically a bill is initiated in Lok Sabha or in Rajya Sabha and it is known as Constitutional Amendment Bill. In either house it can be initiated. Once the bill, for example, is initiated in Lok Sabha, it goes through three readings. First reading, second reading. In second reading there is clause by clause discussion of that bill. Then third reading. Once this procedure is followed, it goes to other house, that is Rajya Sabha. In Rajya Sabha also same procedure is followed. Once the bill is passed by Rajya Sabha, this constitutional amendment bill is passed by Rajya Sabha, it goes to the President of India. And President of India has to give his signature, he has to sign it, he has to give his assent. Once this bill gets the assent of the president, it becomes the Constitutional Amendment Act, it becomes the law, and the constitution stands amended. That's it. But there are many provisions of the Constitution of India which can be amended by different procedures. There are certain provisions of the Constitution of India which can be amended by simple majority of the members present and voting. Simple majority, that is 50% of the MPs, more than 50%, 50% plus 1. So if more than half of the MPs present and voting, they are willing to amend, they are in favor of this amendment, the bill becomes a law once it gets the president's assent. For example, there are certain matters like if you want to change the name of a state, if you want to change the boundary of a state, if you make the state larger, if you want to make a state smaller in area. So these things can be done through a simple majority. Then there are certain provisions in the Constitution of India which can be amended only by special majority, not by simple majority. What is special majority? Special majority means at least 2/3 members of the Lok Sabha or even Rajya Sabha present and voting. They should be willing to pass this bill. At least two-thirds of MPs. This is known as special majority. Then there is one more. There are many provisions of the Constitution which are very rigid. They are very rigid provisions. These can be amended by special majority, two-thirds majority of the members present voting, plus at least ratification of the legislatures of the half of the states. So at least half states of India's legislatures should ratify it. कम से कम आधे जो इंडिया के राज्य हैं उनकी सहमति चाहिए, प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा. अगर ये होगा तो जाके अमेंडमेंट होगी. तो ये तीन टाइप के प्रोसीजर हैं, ये आर्टिकल 368 में ही दिए गए हैं, लेकिन सिंपल मेजोरिटी की अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में नहीं दी गई. तो ये है. तो कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की सिंपल मेजोरिटी से हो सकती हैं, 50% से ज़्यादा एमपी अगर हामी भर रहे हैं तो हो जाएगी. और कुछ चीज़ें या कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी से चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए एमपीज़ की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और प्लस 2/3. और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनसे जो 2/3 मेजोरिटी से भी नहीं चेंज हो सकते, उनके लिए स्टेट्स, कम से कम हाफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी जरूरी है, हाफ स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स की रेटिफिकेशन या सहमति भी जरूरी है, फिर जाके वो चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कोई चेंज करनी है, स्टेट्स की लिस्ट में से कोई मैटर उठा के यूनियन में डालना है या यूनियन का मैटर उठा के स्टेट में डालना है, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, इनके लिए स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी जरूरी है. और भी बहुत चीज़ें हैं. तो दिस इज़ अ शॉर्ट लेक्चर. शॉर्ट लेक्चर में हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकेंगे, मैं बेसिक आइडिया आपको बता रहा हूँ. सो वन थिंग which is very important and which should be kept into mind by the parliamentarians while amending any provision of the constitution is that they should not touch the basic structure of the constitution. They should not change or try to change through that bill
or constitutional amendment bill the basic structure of the Indian constitution. Now what is basic structure? This has been held in Keshavanand Bharti versus state union of this state of Kerala. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 एक ऐसा लैंडमार्क केस है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है. इसको नहीं छेड़ सकते आप, इसको नहीं चेंज कर सकते. बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज. किसी एक बंदे का या किसी एक पार्टी का राज नहीं है इंडिया में, कानून का राज है. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो इलेक्शंस होती हैं किसी के दबाव में आके नहीं होनी चाहिए, फ्री और फेयर होनी चाहिए. दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते. Sovereign democratic republic structure of Indian democracy. Power of judicial review, very important. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर. जुडिशियल रिव्यू बेसिकली होता क्या है? अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, अगर वो लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनके खिलाफ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट 226 में, और रिव्यू करके उसको नल एंड वॉइड भी कर सकता है, खत्म कर सकता है, या उसको कुछ अमेंडमेंट करने के लिए रिकमेंड करता है वो, आप इसको अमेंडमेंट करो, या ये नल एंड वॉइड है, जीरो है. तो दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू और द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस सुप्रीम कोर्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिकली जुडिशरी का काम क्या है? ये चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं. जुडिशरी का काम होता है पार्लियामेंट के ऊपर आई रखना, निगाह रखना, देखना कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ ना बना दे जो फंडामेंटल राइट्स को छेड़ता है या उसको एब्रोगेट करने की कोशिश करता है. या सरकार को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसा लॉ ना बनाए जो भारत के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे. तो ये है जुडिशरी का काम. ठीक है, तो जुडिशरी इन दोनों अंगों के ऊपर निगाह रखती है. बेसिकली जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना. तो हमारे पावर्स की 3 जगह पे बांटी हुई है पावर. लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, पार्लियामेंट लॉ बनाने का काम है. एग्जीक्यूटिव का काम है उस बने हुए लॉ को लागू करना. एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सरकार. प्रेजेंट हमारा एग्जीक्यूटिव कौन है? मोदी सरकार. तो वो लागू करती है, पार्लियामेंट में बने हुए लॉ को लागू करती है सरकार, इंप्लीमेंट करती है. और जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का काम है देखना कि जो सरकार लागू कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, कहीं वो आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को नहीं वायलेट कर रही, और पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया कहीं वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा. अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है. कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ एवरी लॉ. पार्लियामेंट जो मर्जी लॉ बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता. कॉन्स्टिट्यूशन इज सैक्रोसैंक्ट, इट इज मदर ऑफ एवरी लॉ. हर एक कानून की माँ है संविधान हमारा, और संविधान को प्रोटेक्ट करता है हमारा जुडिशरी. तो दिस वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट टॉपिक. अब बेसिक स्ट्रक्चर कर रहे थे. बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा गया. सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये तीनों अंग अलग अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है. बेसिकली इंडिया में टोटल सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है. इंडिया में हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के साथ ही रहती है. जैसे हमारी एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट में बैठती है ना, सरकार पार्लियामेंट में बैठती है. पार्लियामेंट में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा. लोकसभा भी हम बात करें, पॉपुलर हाउस है, बड़ा हाउस है. 545 एटलीस्ट आई थिंक मेंबर्स हैं लोकसभा के. तो उसमें स्पीकर के एक तरफ तो ऑपोजिशन बैठती है और एक तरफ सरकार बैठती है. तो सरकार क्या है? एग्जीक्यूटिव ही है ना. तो एग्जीक्यूटिव सिट्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. एग्जीक्यूटिव जो है हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में तो बैठती है. तो टोटल सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट में इंडिया में. लेकिन यूएसए में टोटल सेपरेशन ऑफ पावर्स. कांग्रेस अलग है, प्रेसिडेंट अलग है, जुडिशरी अलग है, टोटल सेपरेशन ऑफ पावर्स. इंडिया में ऐसे नहीं है. लेकिन इंडिया में जुडिशरी बिल्कुल अलग है. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड parliament, and it keeps an eye on these institutions so that they should not cross the limits given in the Constitution of India. So amendment is a change or alteration only for the purpose of making the Constitution of India more perfect, more effective and more meaningful. तो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा बनाने के लिए, उसको परफेक्ट बनाने के लिए, उसको इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए अगर अमेंडमेंट करनी चाहिए तो करो. उसको बुरा बनाने के लिए नहीं, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसकी प्रोविजंस को और बढ़िया, परफेक्ट और मीनिंगफुल बनाने के लिए आप अमेंडमेंट कर सकते हो. पार्लियामेंट को
पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी चीज को, किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकती है।